Hello students, this is your Shashank sir and this is the solution for Spark test class 12 full syllabus starting with question number 131. Question number 131 क्या बताता है कि cryptorchidism is a condition. Cryptorchidism is a condition when testis does not descend into the scrotum. जब testis scrotum में descend नहीं होता है इसको cryptorchidism बोलते हैं. करेक्ट है. Come to the next question. The mammary gland contains what? आपका glandular tissue होता है and there is a variable considerable amount of fat. So option हो जाएगा glandular and fat. Come to the next question. In the process of spermatogenesis, the first maturation division हमेशा क्या होता है? Reduction division होता है. That is found in meiosis 1. It is reduction division that is found in meiosis 1. Coming to the next question. In male LH, luteinizing hormone acts on what? Luteinizing hormone acts on Leydig cells. Leydig cells पे काम करेगा and it stimulates the synthesis and secretion of androgens. Question number 135. A primary follicle gets surrounded by two or by more layers of granulosa cells as well as a new theca and is called as. जब primary follicular cells जब टू और मोर लेयर ऑफ ग्रेना से आपका क्या हो जाएगा, टू और ग्रेनुलोसा सेल से हो जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी फॉलिकल. इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ए टू डी. ठीक है, तो ए वाला क्या है? ए वाला आपका प्राइमरी फॉलिकल है. बी वाला क्या है? बी वाला आपका सेकेंडरी फॉलिकल है. करेक्ट है. वेयर एज सी वाला क्या है? आपका ग्राफियन फॉलिकल है. ये क्या है? दिस इज द सेकेंडरी oocyte है. करेक्ट है. डी क्या है? डी है कॉर्पस ल्यूटियम है. एंड ये क्या है? दिस इज कॉर्पस एल्बाइकेंस. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए. ए इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गैमेट मदर सेल. दिस इज रॉन्ग. B, corpus luteum it cannot be formed. B is corpus luteum. B is तो secondary follicle है, ये भी गलत है. C is Graafian follicle, mature follicle which ruptures to release secondary oocyte. This is correct. This is the correct option. तो and D is tertiary follicle. नहीं, D corpus luteum है, तो ये गलत है. ठीक है, ओके. तो ये बी वाला टर्शियरी फॉलिकल भी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 137. द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स आर हाईएस्ट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज में सेकेंड हाफ में कौन सा किसका हाई होगा? प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन के बाद से प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन बढ़ जाता है. सो फर्स्ट हाफ में किसका हाई होता है? फर्स्ट हाफ में एस्ट्रोजन का हाई होता है, बिकॉज वो डेवलपिंग फॉलिकल्स रिलीज करता है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 137, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एट देयर हाईएस्ट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज? दिस इज द प्रोजेस्टेरॉन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Corpus luteum produces large amount of hormone that is essential for maintenance of. Corpus luteum क्या produce करेगा? Corpus luteum हमेशा क्या produce करेगा? और corpus luteum in a very large scale क्या produce करता है? Progesterone. ठीक है. अच्छा, मैच द फॉलोइंग. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नोट की तरह आप काम कर सकते हो. मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेसल्स which form liquid that comes out of the vagina. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज. इट इज़ अ टेम्पोररी. ल्यूटियल फेज में टेम्पोररी इंटेग्रल ग्लैंड फॉर्म होता है दैट सीक्रेट्स अ हार्मोन एंड मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. राइट. Follicular phase क्या है? Follicular phase is the formation of mature Graafian follicle. And regeneration of the endometrium uterus. And ovulatory phase क्या है? Ovulatory phase it is the secretion of luteinizing hormone at its maximum level and induces the breakdown of follicles to release the female gamete. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी. Coming to the next question. Again it is match the following. ये match the following है. luteinizing hormone क्या करेगा? LH it leads to the development of the corpus luteum. progesterone क्या करेगा? It is essential for maintenance of the uterine layer और endometrium. estrogen क्या करेगा? estrogen develops the female secondary sexual characters. whereas follicle stimulating hormone क्या करेगा? maturation of Graafian follicle and oxytocin causes the
कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3, डी इज 4 एंड ई इज 5। Question number 151. From the sexually transmitted diseases mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organ. तो यहाँ पे कौन सा STD ऐसा है जो सेक्स ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करेगा? साइफिलिक्स करेगा, गोनोरिया करेगा, जेनिटल वार्ड्स करेगा, क्या नहीं करेगा? एड्स। एड्स इट्स एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे बहुत सारे सिंड्रोम्स, बहुत सारे डिजीज एक साथ में होता है, राइट? एंड दीज डिजीजेस डू नॉट स्पेसिफिकली अटैक व्हाट? द सेक्स ऑर्गन्स rather than the entire body. Okay, coming to the next question, match the following. This is also very very important. Match the following. So non medicated IIDs क्या है? non medicated IIDs है Lipiloops. Copper releasing IIDs क्या है? CUT, CU7, Multilo 375. and hormone releasing क्या है? Progesterone and LNG20. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, A is 2, B is 3 and C is 1. Medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy is considered safe up to first trimester. First trimester. First trimester कब होता है? First trimester is the 12 weeks. Clear है? Okay, coming to the next question. Match the following है. This is also very very important. ZIFT, zygote intrafallopian transfer. Intrafallopian transfer, that means fallopian tube में होगा. तो fallopian tube में अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो embryo must be up to 8 blastomeres. GIFT, gamete intrafallopian transfer. As you are transferring gamete, it is a transfer of ovum into the oviduct. IUT, intrauterine transfer. Intrauterine transfer तब होता है जब ब्लास्टोमेट का नंबर 8 से ज़्यादा बढ़ जाता है. सो इट्स द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रायो मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स. एंड IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द यूटेरस. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, A is 2, B is 1, C is 4 and D is 3. Coming to the next question. Question number 145. Question number 145, right? मैच द फॉलोइंग है. क्यूरेबल STI, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. क्यूरेबल सिफिलिस, ये क्या है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नॉन क्यूरेबल जेनिटल हार्पिस, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन. फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था? 1951. MPT कब लीगलाइज हुआ था? 1971. राइट. सो ऑप्शन हो जाएगा A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. Coming to the next question. The good human hypothesis. The good human hypothesis was disapproved by. Good human hypothesis किसने disapprove किया था? By discovery of blood circulation by William Harvey. William Harvey ने जब blood circulation discover किया था उस टाइम पे क्या हुआ कि good human hypothesis disapproved. Also demonstration of normal body temperature in person with black bile. जब person with black bile का भी normal body temperature demonstrate हो गया तो ये मालूम चल गया कि good human hypothesis काम नहीं करता. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा both A and C. Coming to the next question, match the following. Which of the following is incorrect? Incorrect बोला है. Now cocaine, leaves of Erythroxylum coca, this is correct. गांजा dried leaves of male plant. Male नहीं female plant होता है. Male नहीं female plant होता है. Female plant of Cannabis sativa. Right. Belladonna leaves and roots of Atropa, correct है. Opium, dried latex of unripe capsules of poppy plant. Papaver, somniferum. ठीक है. सो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है? रॉन्ग कौन सा है? 147 का बी. 147 का बी. ठीक है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. हेल्पर टी सेल क्या है? हेल्पर टी सेल विल स्टिमुलेट द स्पेसिफिक बी सेल. किलर टी सेल releases perforin to cause cell lysis. Suppressor T cell, it suppresses the hyperactive and self-reactive killer T cells, and memory T cells recognize antigen for future expose. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 148 का C. 149, question number 149. Which of the following statement is incorrect? The infective stage in man is sporozoid. ये प्लाज्मोडियम का बोला है. This is correct. Sporozoid attacks RBC resulting in rupture. नहीं, sporozoid जो infective stage है वो पहले किसको अटैक करेगा? लीवर सेल को. ये पहले किसको अटैक करेगा? लीवर सेल. तो ये वाला गलत है. फीवर यूजुअली अपीयर्स ऑन एवरी 3rd and 4th day. दिस इज करेक्ट. हेमोजेन कॉजेज द शिवरिंग ऑफ हाई फीवर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन क्या हो जाएगा? 149 का बी. कमिंग टू क्वेश्चन 150. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? फिलियरेसिस लिम्फ नोड्स. यस, वो लिम्फ नोड्स में ही करता है, स्पेसिफिकली लोअर लिम्स का. एस्केरेसिस लार्ज इंटेस्टाइन नहीं. एस्केरेसिस किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एस्केरेसिस स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. एमीबायोसिस अगेन, एमीबायोसिस किधर में होगा? एमीबायोसिस होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. एमीबायोसिस लार्ज इंटेस्टाइन. एंड एंटेरिक फीवर मतलब टाइफॉइड. एंटेरिक फीवर मतलब
टाइफॉइड ना, टाइफॉइड यूरिनरी ब्लैडर में नहीं, ये भी क्या हो जाएगा मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये करेगा। तो यहाँ पे विच वन इज करेक्टली मैच, इट इज़ नंबर 150 का ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करेगा, निमोनिया कराएगा। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी क्या कराएगा, वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी फिलेंटाइसिस कराएगा, एलिफेंटाइसिस। साल्मोनेला टाइफी इज टाइफॉइड वायरस माइक्रोस्पोरम कॉजेज रिंगवर्म। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन इज ए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। टाइफॉइड, टाइफॉइड इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड इज़ अ वायरल डिजीज, राइनोवायरस, राइट। रिंगवर्म, रिंगवर्म इज़ अ फंगल डिजीज, मोस्टली क्या है, माइक्रोस्पोरम है, राइट। एंड फिलेराइसिस क्या है, इट इज़ अ फिलेराइसिस क्या है, दिस इज़ अ हेलमेंथिक डिजीज, राइट। एंड मलेरिया क्या है, इट इज़ अ प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ए इज़ 2, बी इज़ 3, सी इज़ 4, C is 5, D is 1 and D is 1 and E is 4. Okay, coming to the next question, match the following। गम्बूसिया, गम्बूसिया फिश है जो मॉस्किटो लार्वे को खाता है। उसके बाद चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस। IgE, IgE कब निकलता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में। एंड कार्सिनोजन नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मल सेल को कार्सिनोजेनिक बना, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करवा के वहाँ पे कैंसरस सेल बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 153 का बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है, इट इज़ अ सेडेटिव एंड पेन किलर। कोकेन क्या है, ये यूफोरिया के लिए यूज़ होता है। चरस, चरस क्या है, अफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एंड हीरोइन, इट एक्ट्स एज अ डिप्रेसेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ 2, बी इज़ 4, सी इज़ 1, डी इज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट्स अ मैच ऑफ फॉलोइंग। सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर क्या है, PML पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो, PML न्यूट्रोफिल्स, राइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर इज टीयर्स फ्रॉम आइस। साइटोकाइन बैरियर्स आर इंटरफेरॉन्स, वेरस फिजिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर है स्किन। ऑप्शन हो जाएगा आपका 155 का डी। ड्यूरिंग अर्ली कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ द सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज लाइटिंग एंड यूवी रेज। The presence of different types of beaks and finches of Galapagos Island adapted different feeding habits provide evidence for। Galapagos Island में finch किसका evidence देता है, it is natural selection, natural selection, क्योंकि they have divided their niche, ठीक है, with the help of different beak shape which enables them to eat differently and thereby avoid competition. Okay, Hardy-Weinberg principle gets affected by gene migration, gene flow, natural selection, genetic recombination, genetic drift and mutation. So all of this. Coming to the next question, match the following. अच्छा, disruption, types of natural selection के ऊपर क्वेश्चन है। Disruption, more individuals acquire peripheral character. Disruption क्या है, more individuals acquire peripheral character. Directional change क्या है, more individuals acquire value other than the mean character. More individuals acquire value other than the main character value. And stabilization क्या है, stabilization, more individuals acquire the mean character. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 159 का बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। होमो हैबिलिस, ये ब्रेन साइज के साथ मैच करने बोला है। होमो हैबिलिस कितना है, 650 to 800 सीसी का। देन होमो निएंडरथैलिस 1400 सीसी का है। होमो इरेक्टस 900 सीसी का है। एंड होमोसेपियंस कितना है, होमोसेपियंस है 1350 सीसी, ठीक है, 1350 सीसी, राइट। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 160 का बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस अगेन माइक्रोसिन ह्यूमिडिफायर। लैक्टोबैसिलस कर्ड होता है, लैक्टोबैसिलस कर्ड के लिए बनता है, सो मिल्क करेक्ट है। प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी, इट कॉजेज लार्ज होल्स, राइट। डोसा एंड इडली डो से बनेगा, ठीक है, राइट। व्हाट इज बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 161 का ए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन। स्टैटिन कैसे काम करता है, ये कम्पिटिटिव इनिबिशन करता है, राइट। द एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्पिटिटिव इनिबिशन अलॉन्ग विद द एंजाइम व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो 162 का क्या हो जाएगा बी।
कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस किस लिए होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस इट इज यूटिलाइज फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रिवेंटिंग द हार्ट अटैक। वेरस पेक्टिनेस क्या करेगा? क्लियर फ्रूट बॉटल जूसेस। साइक्लोस्पोरिन ए प्रिवेंट्स रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ऑल्सो ऑर्गन रिजेक्शन में हेल्प करता है। प्रिवेंट्स द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑल्सो प्रिवेंट्स द ऑर्गन रिजेक्शन। जाइमस क्या होगा? जाइमस इज द इथानॉल प्रोडक्शन, जाइमस इथानॉल प्रोडक्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 163 का बी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। पेनिसिलम। पेनिसिलम वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, राइट? बैसिलस thuringiensis, इट किल्स द इंसेक्ट लार्वे। बैक्यूलोवायरस, इट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंड जेनस एंड स्पीशीज स्पेसिफिक। ग्लोमस क्या है? ग्लोमस इज अ बायोफर्टिलाइजर, करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 164 का सी। Coming to the next question, okay, citric acid, asparagus secret करेगा, this is also very very important. Citric acid, asparagus, cyclosporin A, trichoderma, right? Statins, molluscus and butyric acid, clostridium. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा B. A is 3, B is 1, C is 4, D is 2, right? Okay. Coming to the next question, study the correct pyramid that shown अच्छा, ये वाला ऊपर की तरफ स्टिफ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। ये बेस क्या हो गया? सिमिलर हो गया, बेस सिमिलर हो गया। तो ये वाला क्या है? बेल शेप्ड, ये हो जाएगा स्टेबल। एंड ये क्या है? इन अ डिक्लाइन फेज, ये बेस नैरो हो चुका है, राइट? और ये बड़ा हो चुका है, सो दिस इज अ डिक्लाइन फेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, बी हो जाएगा बेल शेप पिरामिड एंड सी हो जाएगा पिरामिड शोइंग नेगेटिव ग्रोथ। Question number 167, integral form of exponential growth equation। integral form of exponential growth equation क्या है? nt is equal to n naught e to the power rt। अच्छा, in a tide pool 18 species of invertebrates were reduced to 10 after one species was removed। this species likely was a keystone species। obviously keystone species तो सबको maintain करता है, ठीक है। read the following statement and which of them are correct। interspecific competition is more severe than interspecific, this is wrong। interspecific is more severe than interspecific because of the same niche के वजह से interspecific is more competitive, ठीक है, right? So उसके बाद resources may not be limiting for competition to occur as in the case of interference of competition, this is correct। ecological herbivores are predators, this is also correct, right? This is also correct। predators maintain species diversity, this is also correct। hyperparasites are parasites over other parasites, this is also correct। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा B। 2, 3, 4, 5 are correct। Coming to the next question, for defense against predators, monarch butterflies become highly distasteful due to the presence of certain chemicals in the body। what is the source? ये जब butterflies के जब caterpillars थे तो वो poisonous weed पे feed करते थे, जिसके वजह से इनका क्या हो गया? ये monarch butterfly distasteful हो गए। so 170 का हो जाएगा 2। Coming to the next question, phytoplanktons in a pond ecosystem act as what? phytoplanktons in a pond ecosystem क्या है? producer है, okay। यहाँ पे फाइंड द करेक्ट ऑप्शन दैट फिल्स द गैप। ब्रेकिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? दिस इज डिकम्पोजिशन। डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे डेट्रिटस, दिस इज डेट्रिटस। डैश ब्रेक डेड रिमेन्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड डैश डेट्रीवोर्स। कौन ब्रेक करेगा? डेट्रीवोर्स ब्रेक करेगा। डेट्रीवोर्स जब इसको तोड़ता है तब ये क्या बनता है? ये क्या होता है? दिस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। मिनरल्स गो डाउन डीप इनटू द सॉइल वाटर, इट इज कॉल्ड एज लीचिंग। डीप इनसाइड का वर्ड हो जाएगा तो वो लीचिंग का मीनिंग हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? यू हैव टू मैच द ऑप्शन कि कौन सा दे रहे हैं। 1 इज फ्रेगमेंटेशन, नहीं, रॉन्ग है। 2 इज डेट्रिटस, नहीं, ये भी रॉन्ग है। 1 इज डिकम्पोजिशन, दिस इज करेक्ट। 4 कैन बी फ्रेगमेंटेशन, दिस इज करेक्ट। एंड 5 कैन बी लीचिंग, दिस इज करेक्ट। सो 172 का हो गया 3 और C। इन अ फूड वेव ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, इन अ फूड वेव एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिड्यूस होता है, राइट? सो इट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हैज़ लेस टोटल एनर्जी। Okay, coming to our next question, true and false in pyramid of biomass is upright in aquatic ecosystem। नहीं, pyramid of biomass क्या है? Inverted है, so this is false। pyramid of energy is always upright in all ecosystem, this is true irrespective of anything। ecological pyramids
एज्यूम कॉम्प्लेक्स फूड चेन एंड एकोमोडेट फूड वेब, नहीं, ये इकोलॉजिकल पिरामिड हमारा फूड चेन के लिए ही बनता है, सो दिस इज रॉन्ग। डेट्रीबोर्ड्स एंड डिकम्पोजर्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, दिस इज ट्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 174 का 3, 174 का 3। Coming to the next question, question number 175. If we completely remove the decomposers from an ecosystem, the ecosystem function will adversely affected because अगर हम लोग ने decomposition को हटा दिया, decomposers को हटा दिया, तब dead organic material ना टूटेगा, dead organic material में ना soluble minerals निकलेंगे या फिर insoluble inorganic minerals निकलेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वुड बी ब्लॉक, क्योंकि अगर ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला तो अल्टीमेटली दिस क्या बोलते हैं ना, बाकी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, समझ में आया, राइट। सो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वुड बी ब्लॉक्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, टेबल गिवन बिलो इज पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, A to J है, एरियाज 1 to 4 है, नंबर ऑफ हैबिटेट्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्पीशीज एंड देयर पॉपुलेशन इन 1000, ओके। अच्छा, यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी किसका ज़्यादा है वही पूछा है, राइट, मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में, राइट, आपका ENI खाली है, तो ये गलत है। सिमिलरली ऑप्शन 2 में B, C एंड G खाली है, ये भी स्पीशीज डाइवर्स नहीं है। अच्छा, 11 में सब भरा हुआ है, 3 एंड 4 में सब भरा हुआ है, लेकिन अगर आप 3 को देखोगे, राइट, आपको यहाँ पे एक एक्सट्रीम मिलेगा, बहुत एक्सट्रीम मिलेगा, राइट, और एक बहुत कम मिलेगा, 0.48। सो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ में ये डाइवर्स नहीं है। वेयर एज लास्ट वाले ऑप्शन में देखोगे तो ऑल ऑफ देम, लास्ट वाले ऑप्शन में देखोगे, so all of them, right, have an equal distribution, all of them almost have a equal distribution, किसी का एक्सट्रीम नहीं है, किसी का कम नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। तो 4 कहाँ पे है? C में, तो 176 का C। Coming to the next question, biodiversity of a geographical region represents what? It is the diversity of the organisms living in the region. Question number 178, read the following statement and give whether it is narrowly utilitarian, broad or ethical. Ecosystem services provided by nature to human beings such as oxygen for respiration, pollination for plants by insect. ये क्या है? Long term है, this is broadly utilitarian. Direct economic benefits derived from by nature by human beings such as food and medicines, ये क्या है? Narrow utilitarian है। Whereas every species has an intrinsic value even if it is not for any economic use, this is ethical। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 178 का B। क्वेश्चन नंबर 179, हैबिटेट लॉस, अगेन ये कॉमन क्वेश्चन है, राइट। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर फीचर नहीं है, ये क्या है? ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अफेक्ट्स एनिमल्स विथ हैबिटेट लॉस एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, दिस इज रॉन्ग। अफेक्टिंग एनिमल्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, ये क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एलियन स्पीशीज इन्वेशन स्टेलर का, ये भी गलत है, क्योंकि स्टेलर का भी क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से गायब हो चुके हैं। एंड को एक्सटिंक्शन, प्लान पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म शो, दिस इज करेक्ट, क्योंकि एक मरेगा तो दूसरा मर जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन में बोथ द पेयर्स करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन, नेक्स्ट सिटू कंजर्वेशन के कुछ एग्जांपल्स देके रखे हैं, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करना पड़ेगा। अच्छा, इन सिटू ऑन साइट एंड ऑफ सिट एंड एक्स सिटू ऑफ साइट। सो इन सिटू नेशनल पार्क, दिस इज करेक्ट। एक्स सिटू बॉटनिकल गार्डन ऑफ साइट है, दिस इज करेक्ट। सो 1 तो करेक्ट ही है, लेकिन सेकंड वाला इन सिटू जीन बैंक नहीं, जीन बैंक क्या है? एक्स सिटू है। वरस टिश्यू कल्चर भी क्या है? एक्स टिश्यू ही है। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, अगेन एक्स टिश्यू है, एक्स सिटू है, राइट। एंड जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क एक्स सिटू है, राइट, एक्स सिटू है। एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे होता और ये यहाँ पे होता तो आंसर ये भी करेक्ट होता। तो यहाँ पे 180 का क्या हो गया? 1, ठीक है। सो दिस वाज माय पार्ट। रोहित सर अपना खुद का पार्ट दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू।